Is the event live now? They will not be able to see the slides, right? No. Zoom से अगर वो करते तो Zoom से they could have done that. Okay. I thought that we have to. So Mobeen, can you tell me a little bit about yourself, your education? Yes, I have done MBA from Open University. Before that, I have MSc Political Science from Jamia University. Right now, I have almost have 8 years experience in pharmaceutical experience. Right now, I am doing the job in Pacific Pharmaceutical as an assistant manager export. So what brings you here today? I received the call, and so I decided I have to join the session, and that. Right. So if you can point out a few things that you would like to learn from today's session, that'll be very helpful. So we are also live on Facebook. Primarily the online learning community will be asking questions as well, but because you're here, so I would want some aspects that you can share. What are some of the things that you have in mind that you would like to be answered today? Right now, I have no idea about this session, but I think as we will review your session, then I can suggest after the session. Okay, no worries. So I'll just briefly introduce myself, and for you and for people who are watching us live. So my name is Saad. I am the founder and CEO of Atletica. Atletica is a company that for the past 4 years is working on helping learners identify their true potential. So हमारा मकसद ये है कि जो भी learner है वो अपने सही फील्ड में सही जहाँ पे वो अपने आप को मैक्सिमाइज़ कर सकता है, राइट. सो अगर एक बंदा बहुत अच्छा हॉकी प्लेयर है तो अगर आप उसको क्रिकेट में डाल दोगे तो वो तो कभी भी अपना पोटेंशियल नहीं रीच कर सकता. इसी तरह अगर आप फार्मास्यूटिकल के अंदर काम कर रहे हो एंड परहैप्स दिस इज़ द फील्ड, जैसे आपने बताया आपने पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है और फिर उसके बाद आपने MBA भी किया हुआ है, राइट. सो एंड पॉलिटिकल साइंस और MBA एक दो डिफरेंट poles हैं, right, poles apart. So we believe that during university time after 1 or 2 years of graduation, that's the most crucial time. वहाँ पे अगर learners को identify करने में help की जाए कि आपका potential क्या है, natural abilities क्या है, natural strength क्या है आपकी, और उसकी basis के ऊपर अगर उसकी बेसिस के ऊपर आपकी स्किल डेवलपमेंट एंड देन प्लेसमेंट की जाए तो दैट कैन हेल्प यू एक्सेल वेरी एट अ वेरी रैपिड पेस. सो हम लोग अभी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ, EGC के साथ मिल के हम यूनिवर्सिटीज़ में भी काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, और यूनिवर्सिटी से जो बाहर आ गए उनको हम स्पेसिफिक करियर फील्ड्स में काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आप एक ग्रेजुएट हो जिसको 8 साल का एक्सपीरियंस है, सो देन यू ऑलरेडी आर इन दैट स्पेस नाउ. सो हमारा अब आपसे रिलेटेड लर्निंग आउटकम जो हम चाहेंगे वो ये हो सकता है कि इफ़ यू वांट करियर एक्सेलरेशन, if you want promotion, if you're confused and you are looking for a switch, perhaps आप switch की कोशिश कर रहे हो, so what are the different avenues that we can create with you. We work with companies as well. हमारे पास companies हैं जो हमारी partners हैं, जिन बच्चों की हम skill development करते हैं या जिनकी job preparation में हम help करते हैं, so they are employed by the companies. So companies में हम उनको place करते हैं with confidence, and of course company से फिर हम उनकी performance evaluation पे help लेते हैं कि अच्छा how are our kids doing, हमारे पास से जो learner जा रहे हैं वो कैसा perform कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी. हम बैंकिंग में डील कर रहे हैं, हम IT में डील कर रहे हैं, हम टेक्सटाइल में डील कर रहे हैं, और इसके अलावा एक मिसलेनियस ग्रुप भी है जहाँ पे जनरल कैटेगरीज आ जाती हैं. बट राइट नाउ हम 3 कैटेगरीज के अंदर बहुत इन डेप्थ डील कर रहे हैं, 3 इंडस्ट्रीज़ के अंदर.
pharmaceutical, not at the moment, but perhaps you can be the first one for us. So आज का जो सेशन है वो हमने डिज़ाइन किया हुआ था प्राइमरली, सो आई एनकरेज यू टू जॉइन आवर कम्युनिटी एज वेल, जो कि अभी हमें लाइव भी देख रहे हैं लोग. सो वी हैव क्रिएटेड दिस कम्युनिटी सो दैट एनी क्वेश्चंस, कोई भी सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई भी चीज़ आपके माइंड में अपनी लर्निंग या ग्रोथ से रिलेटेड है तो आप उसमें फेंक दें. इट्स अ फ्री कम्युनिटी. सो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि लाइक माइंडेड लोग आए वहाँ पे, जो सारे जो हैं वो उस स्टेज पे हैं जहाँ पे दे आर एक्सप्लोरिंग, डूइंग देयर जॉब्स, ट्राइंग टू ग्रो, और हम उनको हेल्प कर सकें और आगे लेके जा सकें. सही. आज का सेशन जो है वो स्पेसिफिकली अराउंड रेज्यूमे था. We were trying to do a resume workshop today and also an info session on Adletica as well. So ये तो मैंने एक बहुत ब्रीफ सा इंट्रो भी दिया है Adletica का कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 4 साल से, और we will have a resume workshop as well. आप माशाल्लाह experienced हो, so you must be quite aware of how to making your resumes and then how to presenting your resumes, but we'll also try to make it a learning session for you. So मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट सेक्टर का. आई वर्कड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर अराउंड 11 years, और उसके बाद 2 साल मैंने एजुकेशन सेक्टर में काम किया है, और उसके बाद मैं अब यहाँ पे काम कर रहा हूँ अपनी कंपनी में. आई वर्क फॉर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आई वर्क फॉर बैंक ऑफ चाइना, आई वर्क फॉर फूड पैंडा, I have worked for GSK, GlaxoSmithKline in Karachi. In fact, that was my first job as well. So even before joining Food Panda, so a lot of different sector experience, and that helps us identify some key traits जो कि CV में, रेज्यूमे में चाहिए होते हैं जब हम evaluate कर रहे होते हैं रेज्यूमेस को, तो वो कैसे होने चाहिए. और दूसरी important बात ये कि what are different things जो बच्चे नहीं या learners नहीं लेके आ रहे अभी, so how can we help them improve on that. Because you're here, so I will encourage you to ask a lot of questions on behalf of everyone as well. We will be taking questions or comments as well, but because you're here, so you are most valuable to me. हम मिलके ये सेशन रन कर रहे होंगे, and I guess we should start now. Yeah. Do you want me to share the slides so you can share? No? Right. So ये सेशन अराउंड 30 minutes का होगा, ठीक है. And please feel free to stop me at any point in time to ask any questions. This goes out for all of you who are watching us as well, और जो यहाँ पे नहीं है फिर भी हमारे साथ है, तो प्लीज़ आप लोग भी कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं. We have our team who's scouting for your comments, और we will be taking into account all the information that is shared by you as well. So जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को साथ लेते चलें, और उससे हमें ज़्यादा हेल्प मिलती है बिकॉज इट गिव्स डायरेक्शन एज वेल. सो वी वांट दिस सेशन टू बी डायरेक्टेड बाय योर लर्निंग नीड्स रादर देन जस्ट द एजेंडा. सो हमारा एजेंडा ही ये है कि आपकी लर्निंग नीड्स को हम टॉपिक के साथ मिला सकें, और उसकी बेसिस के ऊपर हम आज के सेशन के लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन कर सकें. सो रेज्यूमे जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, बिकॉज एवरीबडी हु इज़ इन देयर लास्ट ईयर्स ऑफ यूनिवर्सिटी, या फिर उनका 15 साल का 10 साल का मेरी तरह 10-15 साल पुराने हो चुके हैं, या मुबीन की तरह अभी 8 ईयर फ्रेश हैं, सबको जो है वो रेज्यूमे चाहिए होता है, या हमें एक रेज्यूमे बनाना पड़ता है. बल्कि मेरे एक बॉस थे, स्टेट बैंक के एडिशनल डायरेक्टर थे, वो ये कहते थे कि जिस भी कंपनी में आप पहले दिन जाएं तो पहला काम आपने ये करना है कि अपने रेज्यूमे को अपडेट करना है और उसको संभाल के रख लेना है. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप हर जगह अपने साथ लेके जाएंगे. जिस जॉब में आप जा रहे हैं या जिस जॉब से निकल रहे हैं, दोनों से आपने अपना रेज्यूमे ही लेके जाना है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट थिंग दैट यू डू ऑन योर फर्स्ट डे ऑफ वर्क इज़ अपडेट योर रेज्यूमे एंड कीप इट विद यू. बट देन द सवाल इज़ कि ये रेज्यूमे है क्या, हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं, इसका कौन सा फॉर्मेट या डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइनेबल है या सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और इस डिज़ाइन या फॉर्मेट का हमें क्या फ़ायदा होता है. क्या रेज्यूमे सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पसेस के लिए, सिर्फ HR को दिखाने के लिए होता है, क्या इसका फ़ायदा आपको अपने इंटरव्यू प्रोसेस में भी होता है कि नहीं होता, क्या इसका फ़ायदा आपको जॉब ज्वाइनिंग करने के बाद भी होता है कि नहीं होता. सो ये
इसकी ज़रूरत कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक ये ख़त्म हो जाती है जाके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. सो आज के एजेंडा जो मैंने डिज़ाइन किया था उसमें विल बी टॉकिंग अबाउट द पर्पस, विल बी टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट, विल बी टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइन, देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट कॉन्टेंट एंड अकम्पलिशमेंट स्टेटमेंट. सो हम बात करेंगे इसके पर्पस की, हम बात करेंगे इसके डिज़ाइन की, हम बात करेंगे कंटेंट की, और फिर हम बात करेंगे अकम्पलिशमेंट स्टेटमेंट्स की. इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हमें क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है. What are the things that we need to be avoiding while making our resumes? So अगर मैं मुबीन आपसे सवाल करूँ कि you have been making your resume for like more than 8 years now. So आप resume बनाते हो तो उसका purpose क्या होता है? Like why do you make it? जब आप job shift कर रहे होते हो तब बनाते हो. So क्या आपके back of the mind क्या चल रहा होता है जब आप resume बना रहे होते हो अपना? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी हम की जॉब अप्लाई करते हैं तो यही होता है कि इस तरह का बनाया जाए ताकि जिसके पास भी जाना उससे रिलेटेड ही मैं डाटा उसमें डालूँ, और जॉब स्विच करना ही पर्पस होता है ताकि नेक्स्ट जॉब के लिए मैं अपने आप को दूसरे कैंडिडेट्स की से ज़्यादा उसको मतलब वो मुझे रेफर कर सके. राइट. सो अस्सलाम वालेकुम. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? ज़बरदस्त. सो आई कम बैक टू मुबीन्स कमेंट. आप भी अपना प्लीज़ इंट्रोडक्शन करवा सकते हो मुझे? जी, my name is मोहम्मद जुनैद. मैं BBA कर रहा हूँ from Lahore Gazette University. ज़बरदस्त. Right now मैं digital marketing वगैरह करता हूँ, freelancing कर रहा हूँ साथ. नाइस. Last year लास्ट ईयर है डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग पे, सो यू आर मेकिंग मनी एज वेल. yes. ज़बरदस्त. एंड व्हाट आर योर प्लान्स? What are your plans to create a digital marketing agency and to excel in the AI and machine learning in the future? And so you are doing BBA, but you want to do AI and machine learning. And analytics and marketing analytics एक proper field है, पढ़ाई जाती है हमें. हाँ, हाँ. उसके अंदर जाना है. Nice. Zabardast. Zabardast. That's awesome. Could you please repeat your name again? मोहम्मद जुनैद. Junaid. Mohammad Junaid. So thank you very much Junaid for joining us. So हमने आज का सेशन जो है वो रखा हुआ है resume workshop. But we'll also be introducing Adletica to everyone. हमने उसको join किया है. Information about Adletica. What are different specific things that we offer? वो मैं आपसे end में share करूँगा. शुरू में हमारी चिट चैट हो रही थी मुबीन के साथ तो मैंने थोड़ा बहुत शेयर कर दिया. बट वी हैव स्टार्टेड द रेज्यूमे वर्कशॉप विद एवरीवन ऑनलाइन एंड ऑफ कोर्स इन प्रेजेंस. सो हम बात कर रहे थे कि रेज्यूमे का पर्पस क्या होता है. सो मुबीन ने जैसे शेयर किया कि रेज्यूमे का जो इनिशिएशन पॉइंट है या जो उसकी ज़रूरत महसूस होती है वो तब होती है जब या जॉब लेनी होती है या जॉब स्विच करनी होती है. ठीक है. आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा तो ख्याल है हमारे तो यहाँ पे तभी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारे यहाँ पे इस तरह का कोई होता नहीं है कि प्रोएक्टिवली मल्टीपल जॉब्स या इंटरव्यूज वैसे टेस्टिंग के लिए देना शुरू करें जिस तरह करके. तो मेरा तो ख्याल है जब हमने एक्सेल करना होता है या हमने अपग्रेड करना होता है अपने आप को थ्रू जॉब्स इस तरह की करते हैं. राइट. बिल्कुल सही बात है. एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद यू जो आपने कहा कि हमारे यहाँ, तो ये हमारे यहाँ बड़े कीवर्ड है कि हमारे यहाँ हम रेज्यूमे को तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है. इट्स अ नीड बेस्ड थिंग. हाउएवर रेज्यूमे इज़ नॉट सपोज टू बी अ नीड बेस्ड थिंग. रेज्यूमे के अंदर जिस तरह सेल्स और मार्केटिंग जो है, सेल्स एक ट्रांजैक्शन होती है और मार्केटिंग एक कम्युनिकेशन होती है. जिस तरह सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस है इसी तरह रेज्यूमे की नीड में भी फ़र्क है. रेज्यूमे ज़रूरत के तहत नहीं बनाया जाता. रेज्यूमे इज़ अ मूविंग डॉक्यूमेंट जो कि हर वक्त आपका एक, सो वी आर ऑलवेज सेलिंग आवर सेल्स. हम हमेशा अपने आप को सेल कर रहे होते हैं. आप यहाँ आए हैं, आप किसी मकसद के लिए आए. यू वांट टू गेट समथिंग आउट ऑफ हियर, राइट? एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ यू गाइज. हम चाह रहे हैं कि हम आपको इन्फॉर्मेशन देके आपके लर्निंग आउटकम्स बढ़ा सकें. आप यहाँ आए हो ताकि आप देखो कि हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, सेशन आपको क्या लर्निंग दे सकते हैं. देयर इज ऑलवेज अ कम्युनिकेशन दैट गोज ऑन एंड योर रेज्यूमे प्लेज अ पिवटल रोल. हाँ, उसमें ट्रांजैक्शन का एलिमेंट तब ऐड होता है जब आपकी नीड आ जाती है, मगर उसमें अपग्रेडेशन या उसकी जो नेचर ऑफ इम्प्रूवमेंट्स दैट कैन बी मेड इन द रेज्यूमे वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है. अगर आप एक वर्कशॉप अटेंड करते हो तब भी आपका रेज्यूमे ऐड होता है. अगर आप इंटर्नशिप करते हो तब भी ऐड होता है. अगर आप एक प्रोजेक्ट करते हो तब भी ऐड होता है. सो रेज्यूमे को तब अपडेट नहीं करना चाहिए जब आप
जॉब के आप अपने शायद 8 साल को जस्टिफाई ना कर सको कहीं पे, अगर आप 8 साल बाद बैठ के एक जगह अपना रेज्यूमे, क्योंकि आपने इतनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की होंगी जो शायद आपको उस 8 साल के एंड पे शायद याद ना रहे, या वो अप्रिसिएशन को आप अंडरमाइन कर जाओ, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी अकम्पलिशमेंट्स को, आप अपने रेज्यूमे की कंटेंट को वेरी डिलीजेंटली, वेरी रेगुलरली अपडेट करते जाओ, इवन इफ यू आर इन द यूनिवर्सिटी, even if you are in the and more so if you are in the university, because उनके पास जो professional world के अंदर है उनके पास तो they have very tangible projects, but on the other hand people who are in their universities उनके पास projects होते हैं जो यूनिवर्सिटी में किए होते हैं, because आप तो अपनी बेस लाइन से आगे आ रहे होते हैं, राइट। सो रेज्यूमे जो है वो सेलर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक मार्केटिंग टूल है। दैट्स द डिफरेंस, कि वो एक सेलिंग टूल नहीं है। आप अपने आप को बेचने के लिए रेज्यूमे इस्तेमाल नहीं करते, आप अपने आप को मार्केट करने के लिए इस्तेमाल करते हो, बिकॉज यू वांट टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन, राइट। और उस कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है? उस कम्युनिकेशन का पर्पस है कि यू कैन लैंड इंटरव्यूज, यू कैन लैंड जॉब्स। इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं HR में बैठा हुआ हूँ तो आप मेरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुबीन कौन है, जुनेद कौन है, उन्होंने क्या किया हुआ है। सो यू हैव टू गेट मी एक्साइटेड अबाउट इट। सो जितनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप उस पर करेंगे उतना ज़बरदस्त हमारा होगा। सो इट्स अ कम्युनिकेशन टूल, इट्स अ मार्केटिंग टूल, राइट। इट्स नॉट अ सेलिंग टूल, राइट। दैट्स द आउटकम दैट यू वांट आउट ऑफ इट, बट इट्स नॉट अ सेलिंग टूल, इट्स अ मार्केटिंग टूल। और दूसरी बात यह है कि अब पहला तो पर्पस हमें ये समझ आया कि इट्स यूज टू कम्युनिकेट विद पीपल। अब दूसरी बात ये आती है कि कम्युनिकेट विद होम, एंड दैट्स वेयर मुबीन ने कहा कि हम उसको कस्टमाइज करते हैं, हम उसको, आप कम्युनिकेशन को टेलर करते हैं। अगर आपने एक बच्चे से बात करनी होती है तो आप अपनी अंदाज आपका और होता है, अगर आपने एक बड़े को एड्रेस करना होता है और होता है। अगर आपने एक फॉर एग्जांपल इवन इन द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, अगर आप GSK में बात कर रहे होंगे तो एक अलहदा स्टाइल होगा, फाइजर में कर रहे होंगे एक अलहदा स्टाइल होगा, राइट। सो मल्टीनेशनल में एक अलहदा माहौल है, अगर आप लोकल में जा रहे हैं तो एक अलहदा माहौल है वहाँ पे, राइट। सो आपने अपनी कम्युनिकेशन को उस हिसाब से टेलर करना होता है, राइट। दूसरी बात ये कि आपका जो कंटेंट होता है दैट फॉलोज एज वेल। सो इसका पर्पस, नंबर 1, इट्स अ मार्केटिंग टूल। नंबर 2, इट्स पर्पस इज टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी ऑडियंस कौन है। द ऑडियंस कैन नॉट बी सेम। सो एक जनरल रेज्यूमे जो हम सोच लेते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, एक बना दें और ऐसे फ्लड कर दें मार्केट के अंदर। जनरली उसमें यही होता है कि आप 100 में से 2 एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, मगर अगर आप 100 में से 40% सक्सेस रेट या 50% एम कर रहे हैं तो देन यू विल टेलर इट, यू विल स्पेंड सम टाइम, यू विल गेट टू नो कि यार लिंक्डइन पे जाएंगे, आप देखेंगे कि HR में कौन सा बंदा है, लड़की है लड़का है, राइट। सो मुझे कौन से स्किल्स वहाँ पे डालने चाहिए, मुझे JD पढ़नी चाहिए अच्छी तरह, राइट। सो देन यू विल स्पेंड सम टाइम इन क्राफ्टिंग इट, कस्टमाइजिंग इट अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। एक आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ उसके पर्पस के बारे में, वो ये है कि कई दफ़ा हमारा ख्याल होता है कि रेज्यूमे जो है वो बैकवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हमारी पिछली चीज़ें ये बता रहा होता है, ये किया मैंने अब तक, मैंने ये किया, मैंने ये किया। बट आई थिंक अदरवाइज, आई थिंक ये एक फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट है। इसकी बेसिस के ऊपर आपके करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या चेंज हुए हैं, आप आगे क्या करना चाहते हो, आपने जो सीखा उसको अप्लाई कैसे करना चाहते हो, दैट इज समथिंग दैट हैपन्स इन द इंटरव्यू। सो ये एक रिलेशनशिप स्टार्टर है, ये रिलेशनशिप को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है। ये ऐसा नहीं होता कि इट जस्ट गेट्स यू अ जॉब बेस्ड ऑन द प्रीवियस इन्फॉर्मेशन दैट इट हैज़। नो, इट ओपन्स अप द रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। सो ये एक फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट है, विच इज़ वाई इट शुड बी अ मूविंग डॉक्यूमेंट। मूविंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये हमेशा अपडेट होता रहना चाहिए। सो रेज्यूमे जो होगा वो हमेशा एक फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट होगा। आर यू कन्फ्यूज्ड मुबीन? Yes. मैंने कहा कन्फ्यूज हो, कुछ सोच रहे हो? राइट। डू यू हैव एनीथिंग टू शेयर इन योर एक्सपीरियंस जब आप इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए जाते हो? तो आपने कभी नोटिस किया कि कौन से इंटरव्यूज़ में आप एस कर गए ज़बरदस्त तरीके से, और कौन से इंटरव्यूज़ में शायद आपको लगा कि थोड़ा बेहतर हो? अभी जो आपने बात की, आई थिंक सो मेरे लिए जो मेरा रेज्यूमे है वो हिस्ट्री है, ठीक है। हाँ, जिसको एशिया को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ उसके लिए वो फॉरवर्ड है। उस बेस पे मेरे साथ मुझे जॉब ऑफर करेगा कि क्या आइंदा
हमारी कंपनी में ये आगे चल सकता है या नहीं चल सकता, क्योंकि डेफिनेटली ही विल हायर मी जस्ट बिकॉज ऑफ अगर वो देख रहे हैं कि ये न्यू टास्क ये इस बेस पे न्यू टास्क ये अचीव कर सकता है, तो इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो आई थिंक बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए न्यू चीज़ एक वर्ड न्यू समझ लेके ऐड हो गया मेरे पार्ट। राइट, नाइस। नहीं, दिस इज़ वेरी नाइस। आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरह सम अप किया है कि हर पर्सोना का उसको परसीव करने का वे अपना होगा। सो आपका जो उसमें स्टेक होगा वो ये होगा कि आप अपनी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर आप उनको प्रेजेंट कर रहे हैं अपना आप। उनका स्टेक ये होगा कि वो उसकी बेसिस पे रिलेशनशिप देख रहे हैं कैसा रहेगा आगे। दैट्स द पॉइंट ना, कि आप और वो मिल ही इसीलिए रहे हैं कि ये देख सकें कि ये रिलेशनशिप कामयाब होगा कि नहीं होगा। एंड विच इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ टू अंडरस्टैंड कि जब HR को एक रेज्यूमे मिलता है तो वो उसको स्कैन कैसे करता है। क्यों ऐसा कहते हैं कि some people do very well in scanning process and some people need that in person मौका उन्हें मिले और वो in person बात करें तो उनको अपने आप को बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं। कभी देखा है ये कुछ लोग होते हैं जो बड़े ब्रिलियंट होते हैं लेकिन उनके ना रेज्यूमे स्कैनिंग पोजीशन पे ना रह जाते हैं, वो मतलब वो उस स्टेज से आगे नहीं जा पाते। लेकिन यही उन्हें कहीं मौका मिले इन पर्सन बात करने का, 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करने का, तो बड़ा ज़बरदस्त एस कर जाते हैं वो उसको, वो कैजुअली ले जाते हैं। सो क्यों वो एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं होते मगर दूसरे में वो एस कर जाते हैं। एंड ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसको समझना। अगर आप इन पर्सन कॉन्वर्सेशन एस कर सकते हो तो रेज्यूमे एस करना तो ज़्यादा आसान काम है, लेकिन अगेन उसमें एफर्ट डालनी पड़ती है थोड़ी सी। सो वो स्कैनिंग प्रोसेस क्या होता है? नंबर 1 तो जब भी कोई स्कैन कर रहा होता है आपके रेज्यूमे को, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दे आर लुकिंग फॉर रीजंस टू डिस्कार्ड इट। ठीक है, पहले तो वो जैसे हम MCQs में पढ़ते हैं ना कि अगर सही जवाब नहीं आता तो गलत जवाब तो आप माइनस करें ना उसमें से। तो दे आर लुकिंग फॉर रीजंस टू डिस्कार्ड इट। आपने कोई एरर किया है, इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, फॉर्मेट ठीक नहीं है, डिफिकल्ट टू रीड है, छोटी छोटी एलिजिबल राइटिंग में आपने डाल दिया है, इतनी बड़ी सारी तस्वीर लगा के तो बाकी आपने इन्फॉर्मेशन ऐसी नन्ही सी कर दी है, कोई एक्सपीरियंस आपका टारगेटेड नहीं है, फार्मास्यूटिकल की जॉब है, आपने कोक का रेज्यूमे भेज दिया वहाँ पे, राइट? सो दे आर लुकिंग फॉर रीजंस टू डिस्कार्ड इट। दैट्स द ईजिएस्ट वे कि अगर आपको 100 रेज्यूमे आए हैं तो आपने उसको 10 पे कैसे लेके जाना है। तो आपने पहले तो जो आपके पास एक्स्ट्रा आए हैं उनको आपने डिस्कार्ड करना है। सो दे आर लुकिंग फॉर रीजंस टू डिस्कार्ड इट, कि आपने कोई ऐसा जो मैंने बताई चीज़ें आपने ये तो नहीं की उसके अंदर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अटेंशन टू डिटेल आप दें जब भी आप अपना रेज्यूमे चाहते हैं कि स्कैन हो जाए। यू हैव टू मेक श्योर, अगर आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा, अगर आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, अगर आपको पता है कि आपने ग्रामर अच्छी बुरी लिखी है, खासतौर पर जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा करते हैं, because they are struggling with putting information in there, so what they do is they put all the rubbish information in there, so वो उसमें सब डाल देते हैं, कहते हैं वो ढूंढ ही लेंगे इसमें से कोई काम की बात। तो अक्सर ये होता है काम की बात ढूंढने के बजाय वो रद्दी की जगह पे उसका बन जाती है, because there is so much information that you have put on that resume, so it's very important। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं अपनी फील्ड के अंदर, जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हैं, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हैं, राइट, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हैं वैसे वैसे आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज देयर इज़ लेस फ्लेक्सिबिलिटी फॉर यू, राइट? सो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर लुकिंग टू स्विच एंड आप फाइज़र में जाना चाहते हैं एंड आप इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स यहाँ पे देख रहे हैं, राइट? सो अगर आप फाइज़र में जाना चाहते हैं तो यू विल have a specialist interview, you will not have a generalist interview now, right? कल्चर फिट के लिए वो ज़रूर देखेंगे। सो इसलिए अगर वो आपको रिव्यू और स्कैन ही स्पेशलिस्ट बेसिस पे कर रहे हैं, सो देन योर रेज्यूमे हैज़ टू हैव अ लॉट ऑफ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फॉर देम कि आपने कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं। दे विल नॉट बी लुकिंग फॉर जनरलाइज्ड अकम्पलिशमेंट्स, दे विल लुकिंग फॉर स्पेसिफिक स्पेशल अकम्पलिशमेंट्स जो कि आपको सेट अपार्ट करते हैं। और तीसरी बात, जो दूसरी बात है, पहली बात दे लुक फॉर इन्फॉर्मेशन जिससे वो डिस्कार्ड कर सकते हैं, एंड दूसरी चीज़ वो देखने की कोशिश करेंगे व्हाट डू यू हैव टू ऑफर। एंड जैसा मैंने कहा, आप हर एक अपनी डिफरेंट स्टेज पे कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा होगा। जो एक्सपीरियंस लोग होंगे वो अपना एक्सपीरियंस और अपनी जो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है आपको एक रिसोर्स बनाने में, उसकी बेसिस पे नाउ व्हाट यू कैन अचीव, दैट्स समथिंग दैट विल बी लुकिंग फॉर। कि अब भाई इनमें ये पैसिफिक वालों ने इतनी इनमें जो है इन्वेस्टमेंट कर दी है, ही इज़ डूइंग ग्रेट माशाल्लाह। तो ये क्या ढूंढ रहे हैं, अब ये क्या डिलीवर कर सकता है मुबीन? अब मुबीन हमें व्हाट इज़ ही लुकिंग फॉर, व्हाट आर द करियर ऑब्जेक्टिव्स दैट ही इज़ फॉलोइंग, और क्या वो मैच बनता है? ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपना रेज्यूमे भेज रहे हैं
और अभी तक आपने कोई जॉब नहीं की और आपकी पहली जॉब है, और अगर आपने अपना फ्रीलांस का काम भी रखा है, सो व्हाट दे विल बी लुकिंग फॉर इज if they invest their time and energy in you, will it pay off? Are you a good हाँ, कि आप में अगर it's as simple as that, कि क्या putting $1 investment in you will pay results that will outweigh putting $1 investment in any of the other candidates. So वो जो इन्वेस्टमेंट उन्हें करनी है, क्योंकि उन्हें पता है आप फॉरेन डिलीवर तो करोगे नहीं, उन्हें पता है कि आपको काम सीखने में टाइम लगेगा, उनको पता है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को रिसोर्स बनने का जो सफ़र है वो उनको, तो वो ये भी देखेंगे आप कितना टाइम उनके साथ निकालोगे, वो ये भी देखेंगे कि आप कितनी जल्दी क्विक लर्नर हो, आप कितने आपने जो थ्योरेटिकल सीखा हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर, हाउ वेल हैव यू डन, राइट. सो वो सब ये चीज़ें देखेंगे और उसकी बेसिस पे एवेल्युएट करेंगे उसको. बट बॉटम लाइन ये है, दे वुड वांट टू नो व्हाट यू विल ऑफर. आप एज अ रिसोर्स क्या ऑफ़र कर सकते हैं, आप कौन से ऐसे ट्रांसफरेबल स्किल्स लेके आ रहे हैं, आप कौन सी ऐसी बातें लेके आ रहे हैं, प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस लेके आ रहे हैं जो उनको नहीं सिखानी पड़ेंगी, जो आप डिलीवर करेंगे आके, जो आपका एक्सटर्नैलिटी इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट के ऊपर, राइट. और वो क्रेडिबिलिटी भी देखेंगे आपकी इन सारी इन्फॉर्मेशन की. सो ऑल इन ऑल रेज्यूमे स्कैन करते हुए सिर्फ 2 स्टेप्स हैं जो किसी भी HR के माइंड में होते हैं. नंबर 1, कोई ऐसी चीज़ जिससे वो आपका रेज्यूमे डिस्कार्ड कर सकें, एंड इफ़ यू मेक इट टू राउंड 2 देन व्हाट इज़ इट दैट यू हैव टू ऑफर. आप ऐसा क्या ऑफर कर रहे हैं जिसको वो देख सकते हैं. A lot of us have a lot of different formats that we follow, और लोग कई दफ़ा कहते हैं कि 1 पेजर फॉर्मेट होना चाहिए, 2 पेजर होना चाहिए, 3 पेजर होना चाहिए, या हार्वर्ड स्टाइल होना चाहिए, स्टैनफोर्ड स्टाइल होना चाहिए. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो लोग पूछते हैं. वेल मेरा सिर्फ और लोग ये भी कहते हैं इंजीनियर्स का डिफरेंट होना चाहिए, बैचलर्स का डिफरेंट होना चाहिए. बट द ओनली थिंग दैट आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड अगेन दैट दिस इज़ अ कम्युनिकेशन टूल, राइट. क्या आपको लंबी बोरिंग बातें पसंद है? क्या आप 50 पेज पढ़ के किसी को जानने में इंटरेस्ट रखेंगे, या आपको वो जो मैट्रिक के अंदर हम कहते हैं कि ऐसे नाप के जवाब लिखें तो वो मार्क्स मिलते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप वो लंबे लंबे जवाब जिनमें सिर्फ 2 लाइनों में सारी बात समझ आ जाती है, तो क्या आप वो पूरे पूरे पैराग्राफ्स पढ़ना चाहेंगे? आप नहीं पढ़ना चाहेंगे, राइट. या पढ़ना चाहेंगे, राइट. सो फर्स्ट रूल जो हर कोई कहता है, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर फॉर्मेट यू फॉलो, योर रेज्यूमे हैज़ टू बी क्रिस्प. क्रिस्प का मतलब ये है, इट हैज़ टू बी वेरी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. आप चाहे उसमें 50 बातों को एक जुमले में अगर समझ सकते हैं, या एक जुमले के अंदर 50 जुमलों के अंदर वो 50 बातें कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन दैट. बट इन ऑर्डर टू होल्ड अटेंशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको जितना ब्रीफ और जितना क्रिस्प रख सके उतना आप रखें, राइट. सो हाउ लॉन्ग इज़ योर रेज्यूमे बाय द वे? I have just 2 pages. 2 page resume, right. Excellent. I have almost 4 companies experience on the 1 page. ज़बरदस्त. सो अगेन वही चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जो आपको लिखनी चाहिए. एक तो ये है कि इट हैज़ टू बी वेरी ब्रीफ, बट ऑफ कोर्स एज योर नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीज, yes, it becomes difficult to have all the accomplishments on that 1 page. उसको आप जितना भी लॉन्ग करना चाहिए कर सकते हैं. जो वो मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पैदा हुआ, ये मेरा नेम है, ये मैं इस्लाम, मतलब हर चीज़ें बहुत लॉन्ग कर सकते हैं. लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जिस भी कंपनी में आप जॉब कर जा रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, दे विल कंसीडर जस्ट 2 थिंग्स. जस्ट फर्स्ट विल बी द डिग्री, आर यू एलिजिबल फॉर द क्राइटेरिया. सेकंड, you should have to mention on just जो JD जिस जॉब की अप्लाई करें उससे रिलेटेड आप उसके उस पर डाटा डालो. सिर्फ ये 2 चीज़ उन्होंने देखनी. मैंने खुद भी इंटरव्यू लिए हैं, हमें जस्ट ये 2 चीज़ें ही देखनी होती है कि यार हमने अगर MBA मांगे है, ठीक है, MBA किया है, और सेकंड हम मांग रहे हैं 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में, अच्छा फार्मा में एक्सपीरियंस इंटरनेशनल का है, ठीक है, ओके, कॉल करो. ज़बरदस्त. बाकी हम उसको ऑब्जर्व कर लेंगे. नीचे देखने के लिए जाते ही नहीं है कि अच्छा इसने स्टार्ट कहाँ से किया, जो करंट है बस उस पर ही फोकस कर रहे होते हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. अब 2 चीज़ें आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट की हैं. एक, एजुकेशन क्या है, सो एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, और दूसरा मोस्ट रिसेंटली कर क्या रहा है ये बंदा, या जो आपकी रेलिवेंट, सो विच इज़ वाई वी से कि जो आपकी
जो सबसे ऊपर आप चीज़ रखें वो हमेशा वो एक्सपीरियंस होना चाहिए जो बहुत रेलिवेंट है टू विच एवर जॉब यूर अप्लाइंग, ताकि वो दोनों इन्फॉर्मेशन एक रेज्यूमे स्कैनर को शुरू में ही मिल जाए, उसको पता हो कि यार ये बंदा है रेलिवेंट हमारे, सो उसको स्काउट ना करना पड़े पूरा। जी जुनेद, यू हैव द पॉइंट। एजुकेशनल वाला पॉइंट इसके अंदर किया तो सीजीपीए से रिलेटेड बड़ी मिथ होती है, बैचलर्स जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उसकी क्या मिथ है, जैसे कि होता है सीजीपीए या उसका क्या इस हवाले से बता दें। सो अगर आप 3.7 लेके निकलेंगे तो 4 वाला भी बैठा है, ठीक है, तो अब 4 करके आप लेवल में तो आप कंपटीशन तो मेरा ख्याल है करना तो नहीं बनता, लेकिन कंपनी इसको किस तरीके से देगी। सो आई विल टेल यू समथिंग। जब हम अच्छा, हर कंपनी का थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है इसके ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन एज वेल। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप फ्रेश ग्रेड होते हो ना और आप कंपेटिटिव एज ढूंढ रहे होते हो अपना 500 लोगों के अंदर, ठीक है, आप कंपेटिटिव एज ढूंढ रहे हो ना, हाउ एम आई बेटर, हाउ एम आई डिफरेंट, राइट। इफ़ यू हैव वेरी गुड ग्रेड्स, so it tells something about yourself, so people put it there, ठीक है, it's good, it sends out, किसको बुरा लगता है अगर आपने अगर आपका ऑन एवरेज GPA 3.2 था एंड आप 3.8 पे बैठे हुए हो, दैट सेज समथिंग अबाउट यू ना। इन्फॉर्मेशन सिर्फ लिखना, इट्स अ कम्युनिकेशन टूल, इट शुड से समथिंग अबाउट यू, राइट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग द इन्फॉर्मेशन, आपने मुझे आकर बता दिया मेरा 3.7 है, सही है, बहुत अच्छा, सही है, ज़बरदस्त। मगर मुझे ये पता है कि 500 का बैच निकला है और उसमें से एवरेज GPA 3.2 था और ये बंदा 3.7 लेके आया है, सो दैट सेज समथिंग अबाउट योर पर्सनालिटी कि ये हार्ड वर्किंग है, ये स्मार्ट है, इसने समझा हुआ है चीज़ों को, इसने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है इसके अंदर, सेज अ लॉट अबाउट यू, राइट। अगेन, लेकिन अगर आपका एवरेज जो है वो 3.2 था और आप 3 को अपने लिख रहे हो वहाँ पे, सो इट्स एडवाइजेबल कि आप तब ना लिखो अपना CGPA, बजाय फ़ायदा देने के वो नुकसान दे देते हैं आपको, राइट। सो फिर आप अपना CGPA मेंशन ना करो, देन यू शुड मेंशन और हाईलाइट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि थोड़ा स्टैंड आउट करती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर हो गई या कोई आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो गई या आपने कोई इंटर्नशिप की है, सर्टिफिकेशंस, इंटर्नशिप्स। सो कम्युनिकेशन करनी है ना, कम्युनिकेशन में आपने अपना बेस्ट एंगल फॉरवर्ड रखना होता है, दैट्स इट। तो आपका बेस्ट एंगल कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ CGPA हो। आपको अपने बैच की एवरेज नहीं पता कि कहाँ फॉल्ट करते हैं सारे। सो 2-3 बातें होती हैं, जो जितनी अच्छी कंपनीज होती हैं ना, जितनी इंडस्ट्री लीडर्स हैं, दे हैव इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन, दे नो UET का बच्चा जो है वो कहाँ फॉल करता है, दे नो लम्स का बच्चा कहाँ फॉल करता है, दे नो LSE का बच्चा, जो इट्स देयर जॉब। HR का जॉब होता है कि वो यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी आउटरीच पे आते हैं तो उनको एडमिशन ऑफिस वाले, आपके जो एडवांसमेंट ऑफिस वाले होते हैं, सारा डेटा देते हैं उन्हें, राइट। आपकी ग्रेजुएट डायरेक्टरीज होती हैं जो फॉरवर्ड होती हैं कि हमारे बच्चों को देखें, हमारे बच्चों को लें, राइट। सो अगर आप डिस्टिंक्शन होल्डर हो तो यस, क्यों नहीं बताओगे आपके आप डिस्टिंक्शन होल्डर, इसमें शोखी मारने वाली बात थोड़ी है। इट्स मोर अबाउट कि आपने 4 साल मेहनत करके एक चीज़ की है, सो यू वुड पुट इट आउट देयर कि आई एम अ डिस्टिंक्शन होल्डर, इट विल हेल्प यू। शायद ओवर टाइम जब आप मुबीन की पोजीशन में जाओ तो शायद तब आप डिस्टिंक्शन होल्डर लिखना बंद कर दो, तब आप यू विल हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिस पे बट अगैन इट्स अप टू यू। इफ़ यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ डेमॉन्स्ट्रेटेड एक्सेलेंस, व्हाई नॉट पुट इट आउट देयर, यू शुड। कम्युनिकेशन कर रहे हो, अगर आप पंजाब बोर्ड में टॉपर थे और एक ही टॉपर होता है या 2 होते हैं, वो 1 2 3 पोजीशन आई आपकी, राइट, तो आप क्यों नहीं लिखोगे कि आप थे या आप हो। इट विल टेल मी समथिंग अबाउट यू ना, राइट। सो आई पर्सनली बिलीव जब भी ख़ास तौर पर सरकारी इदारों में ये बहुत मैटर करता है, जब आप इंटरव्यूज़ में जाते हो। स्टेट बैंक में जब आप इंटरव्यूज़ करते थे बड़ा मैटर करता था, अगर आप ये डिमॉन्स्ट्रेटेड हिस्ट्री लेके आ रहे हो तो हम बड़ा करते थे। अगर आप टॉप 1% ऑफ द कंपनी में आते हो, अगर आपकी रिपोर्ट्स A आ रही हैं या आई डोंट नो आपका PMS फॉलो होता है कौन सा, लेकिन अगर आप टॉप 1% ऑफ द कंपनी के अंदर आ रहे हो, इट वॉज हाईली लाइकेबल, डिज़ायरेबल। सो दिस वॉज समथिंग जो कि बड़ा टेंजिबल आउटकम था कि मैं, अगर आपने रेज्यूमे अपना लिखा हुआ है कि मेरी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन टॉप 1% की है, फ़ौरन स्कैन हो गया आप आगे। सो क्यों नहीं, ये तो वो चीज़ें हैं जो HR ढूंढ रही होती है अपनी आंखों से। क्यों? क्योंकि इनका अगर ये टॉप 1% में है तो उनकी कंपनी भी इन्हें नहीं जाने देगी। तो उसका मतलब अगर ये स्विच कर रहे हैं तो ही इज़ अ वेरी हॉट कैंडिडेट फॉर एवरी कंपनी। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँ, लास्ट मेरी कंपनी थी वेलशर, मैंने किया था पैडी पार्क से, देन आई हैव टू मूव वेलशर लेबॉर्ट्रीज
और विलशायर में ही बैठा हुआ था। सो जो आपकी इंडस्ट्री होती है उसमें आप खुद अपने आप को मनवा लेते हो। लाइक आपका काम कोई भी चीज़ की इंडस्ट्री में जाएंगे वो बहुत छोटी सी है, लिमिटेड लोग हैं जो HR का आपस में कॉन्टैक्ट होता है। आप लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी अपडेट करके देन जो भी अचीवमेंट आप वहाँ पे शेयर करते हैं। ये पैसिफिक फार्मा पाकिस्तान की फर्स्ट एंड ओनली कंपनी जो हु इज MHL कंपनी जो यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है। इसलिए इनकी तरफ से मुझे कॉल आई HR की तरफ से कि वी वांट टू हायर यू, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड अपनी डिमांड बताएं। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि अपनी जितनी भी लिंक्डइन को आप अपडेट करते रहें और आपका जितना इंडस्ट्री में जितने लोग हैं उनसे इन टच रहें, आपको कुछ जॉब ऑफर होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। रेज्यूमे फेंक देना ही काफ़ी नहीं है। नेटवर्किंग, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को अपडेटेड रखना, एंड जो आप कह रहे हो कि ये एक बहुत छोटी दुनिया है, यस HR वर्ल्ड एक बहुत छोटी दुनिया है और आपस में इनका बड़ा राब्ता होता है। तो जितना आप अपने आप को उसमें इन रखते हो वो मैटर करता है, ऑन टॉप ऑफ द हार्ड वर्क दैट यू डू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खासतौर पर अगर आप फ्रेश ग्रेड हो तो networking with the right people, getting mentorship from the right people, moving in that industry is very important for you. और रिसेंटली मैंने इंटर्नशिप की थी नेपाल में। पेंट इंडस्ट्री का ये है कि कुछ प्लेयर्स बैठे हुए हैं मार्केटिंग, सारी प्लीज प्लेयर अब सेल्स मार्केटिंग के हैं। वही अगर आप एक कंपनी में एफर्ट मारते हैं उसके रिजल्ट ऑब्वियसली बात, आप अगर आपकी कंपनी का मार्केट शेयर ग्रो कर रहा है तो आप ऑब्वियसली दूसरी कंपनी का मार्केट शेयर आप लेके ग्रो कर रहे हो, तो कंपनी में आपका नाम बन जाता है। जिस तरह भाई ने बताया, तो इसी तरीके से वो आप जो नेटवर्किंग वाला जो आप काम बता रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली वो आप ग्रो करना शुरू करें। अगर आप एक इंडस्ट्री में कंसिस्टेंटली अगर आप काम कर रहे हैं, ये ना हो गया आप इंडस्ट्री चेंज कर रहे हैं। तो पेंट इंडस्ट्री में उसके अंदर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि लोग खुद ब खुद ही आपको इधर आप 40 ले रहे हैं, आप 60 ले इधर आ जाए, ठीक है। उधर अगर अच्छा है तो सर आ जाए, आप एरिया सेल्स मैनेजर बन जाए, तो वो फिर इस तरीके से भी चलता रहता है बेस्ड ऑन नेटवर्किंग और लर्निंग के साथ। इसमें कोई शक नहीं। FMCG में भी यही होता है। अगर आप FMCGs को देखो ना, PNG, यूनिलीवर, एंग्रो, इनमें देखो तो सेल्स के जो प्रोफेशनल्स होते हैं दे हैव देयर ओन मार्केट शेयर। वो उनका मार्केट शेयर होता है, उनके ताल्लुकात होते हैं, वो उनकी मार्केट में रिप्यूट होती है। सो बेसिकली कंपनी की रेपुटेशन उनकी बेसिस पे डेवलप हो रही होती है। एंड अगर आप अच्छी कंपनीज को देखो तो वहाँ पे जो बिजनेस डेवलपमेंट का बंदा होता है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लाइंट होता है। तो वो कंपनी के साथ लड़ रहा होता है बाकायदा कि नहीं ये सेल निकालें, ये ऑप्शंस दें, ये पैसे आप दें, यू आर फाइटिंग विद द कंपनी। सो आपका जो पर्सोना होता है वो इज़ अ फ्रेंड ऑफ द क्लाइंट, राइट? सो यू आर नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी बट यू आर अ फ्रेंड ऑफ द क्लाइंट। सो आप उस पोजीशन से बात कर रहे होते हो तो लोग हाथों हाथ लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग जो आप अगर फ्लक्चुएशन देखो, वॉलेटिलिटी देखो इस मार्केट में सबसे ज़्यादा है। आप आधे साल बाद भी प्रमोशंस देख रहे होगे, आप आधे साल बाद भी स्विचेस देख रहे होगे, और अच्छी ये आपने बताया है, मतलब ये एक बड़ी नॉर्मल बात है कि 20,000 30,000 20-30% का फ़र्क आ जाता है, 50% का फ़र्क आ जाता है। लोग को ऑफर्स आती हैं, लोग चले जाते हैं। बट अंडरलाइंग चीज़ क्या है, आपने जो भी किया है, जैसा मुबीन ने कहा, एक द मूविंग डॉक्यूमेंट हैज़ टू कंटिन्यू मूविंग, आपका वो अपडेट होना चाहिए। एंड दूसरा लिंक्डइन आपका एक वही है, अगेन लिंक्डइन पे भी आपकी प्रोफाइल है, वो आपका मूविंग डॉक्यूमेंट है, वो आपका मार्केटिंग है। वो जिस दिन आप उस मार्केटिंग पे कहते हो ना मैं अवेलेबल हूँ, तो लोग ऐसे टूटते हैं आपके ऊपर। अगर आप अच्छा रिसोर्स हो तो लोग टूट पड़ते हैं। लोग वेट कर रहे होते हैं कि आप सिर्फ एक स्टेटस डालो, आई एम अवेलेबल लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, पीपल विल स्टार्ट स्काउरिंग योर प्रोफाइल एंड मेकिंग यू ऑफर्स। मगर उससे पहले यू हैव टू बिल्ड योर प्रोफाइल। अगर आपके लिंक्डइन पे आपने सिर्फ लिखा है स्टार्टेड वर्किंग देयर, ना एजुकेशन का कुछ डाला है, ना आपने रेलिवेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, ना आपने अभी रेज्यूमे को आप कहते हो 2 साल बाद इसको अपडेट करेंगे आराम से, तो फिर देन यू विल हैव टू स्ट्रगल एंड स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफाई किया, क्वांटिफाई किया चीज़ों को, और ऑफ कोर्स लोग खुद आपको जो है ना रीच आउट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। इवन एक मतलब ऐसा हुआ कि जिनका मैंने आपको रेकमेंड कर दिया है, मतलब कि नाइस। मैं जानता भी नहीं उन्हें और कुछ भी नहीं, लाइक वो प्रोफाइल ही थी शायद, या उसमें वो भी इतनी भी तगड़ी नहीं है, बट इंस्टेड कि मैंने आपको रेकमेंड कर दिया है, आप बैटिंग फील्ड भी चले जाइए। हाँ नहीं, इट्स इंफॉर्मेशन गेम है सारी।
It's how well you stay informed and inform others about what you're trying to do. सारी गेम इस वक्त इन्फॉर्मेशन गेम है. We live in an information age. कीवर्ड रिसर्च है सारी. हाँ, सारी किसको है कि गूगल हमें क्यों पसंद है? फॉर ऐसे पकड़ते हैं. इसी तरह अगर हमें लोग आप तक इफ़ यू आर द राइट पर्सन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक कि आप सही बंदे हो करें. इट्स ऑल्सो कि यू डू ऑल द राइट थिंग्स सो दैट पीपल कैन फाइंड यू, राइट. एक दुकान कोने छुपे में है और एक हमें आराम से हम मेट्रो में चले जाते हैं. हमें इसलिए पसंद है, सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है. सो इसी तरह अगर आपकी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह प्रेजेंट करते हो एंड पीपल कैन रीच यू, दे विल प्रेफर डूइंग दैट. सो अच्छा, इस पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात फिर आ जाती है कि कई रेज्यूमेज, मैंने बहुत रेज्यूमेज ऐसे देखे हैं, बड़ी ज़बरदस्त शहाना किस्म के ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट से शुरू होते हैं. वो स्टार्ट में लोगों ने कहा था, आई वॉन्ट टू बी द नेक्स्ट इलॉन मस्क ऑफ पाकिस्तान, आई वॉन्ट टू lend my valuable services to the service of this nation and for the betterment of humanity. Don't do that. Your objective statement, if you use it, वैसे तो ये यूजली फ्रेश ग्रेड्स को चाहिए होती है, राइट, बट प्लीज़ कीप इट रियल एंड प्लीज़ बहुत उसको ना स्पेसिफिक रखने की ज़रूरत होती है, राइट. We don't want a sweeping statement. We don't want something very glorious. We want something that tells us about who you are and what you want to do, right? So आप अपने कुछ 2-3 ट्रेड्स उसमें बता सकते हो और अपना करियर ऑब्जेक्टिव बता सकते हो कि जी मैं सेल्स की फील्ड के अंदर या जो भी आपकी कंपनी जिसमें आप अप्लाई करो आप उससे रिलेटेड हैव एन ओवर आर्चिंग प्रोफेशनल गोल. दैट्स इट. ताकि कंपनी को पता हो कि व्हाट यू हैव टू ऑफर एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी. दैट्स इट. ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट हैज़ टू बी वेरी क्रिस्प. प्रोफेशनल्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट सिर्फ मेरे नज़र में एक दफ़ा यूज़ करते हैं अगर आप अपनी फील्ड स्विच कर रहे हो तो. सो अगर मुझे पता लगे कि मुबीन जो है वो फार्मास्यूटिकल को आफ्टर 8 years बाय करने लगा है, सो आई विल बी क्यूरियस कि क्या हुआ है, हाउ हैज़ हिज ऑब्जेक्टिव चेंज. सो दैट इज़ व्हेन यू शुड हैव एन ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट. कि आपने वहाँ ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट सबको बताया कि जी मैं अब मुझे अब एजुकेशन पसंद है, मुझे लगता है कि लोगों को इम्पैक्ट करने का ये ज़रिया है, सो आई हैव रीडिस्कवर्ड इट, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ. सो दैट इज़ वेयर यू नीड टू पुट इन. अदरवाइज प्रोफेशनल्स को कभी भी नहीं डालना चाहिए. यू हैव अ लॉट ऑफ अकम्पलिशमेंट्स, वो काफ़ी होती हैं बताने के लिए. अच्छा, ये जो मैंने बात की है कि ये कहना आई एम लुकिंग फॉर अ चैलेंजिंग पोजीशन दैट ऑफर्स रूम फॉर एडवांसमेंट, इस तरह की जनरलाइजेशन नहीं करनी, इस तरह की ओवर आर्चिंग बातें नहीं करनी. ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है और हमें लगता है कि हमारे मुल्क में बड़ी काम आती हैं, जो कि आती हैं हमारे मुल्क में ये काम बातें. मगर एक अच्छा एजुकेटेड HR अगर बैठा होगा तो वो आपकी बातें, बिकॉज देयर इज़ नो सब्सटेंस टू इट. आपको कल पूछेगा अच्छा जी आपके मुताबिक चैलेंजिंग पोजीशन कौन सी होती है, आप जवाब नहीं दे सकोगे, राइट. अब आपको पूछेगा रूम फॉर एडवांसमेंट इन व्हाट, या हाउ डू यू फिगर आउट कि आप तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कोई ऐसी बात ना लिखो जिसको आप बाद में जस्टिफाई ना कर सको. ऐसे जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स होती हैं कई दफ़ा इंटरव्यूज़ को रुइन करने का बाइस बनती है, क्योंकि जो इंटरव्यू होता है वो ऐसे पकड़ता है, हंसी छूट जाती है उसकी ऐसा पहला देख के, और फिर वो कहता है कि इसको तो मैंने ग्रिल करना है इस बात के ऊपर, लो जी. तो वो होता है कि आप उसको पकड़ा देते हो शुरू में ही कि डोंट जज मी बेस्ड ऑन द अदर स्टफ, गुड स्टफ दैट आई हैव ऑन माई रेज्यूमे, बट जस्ट स्टार्ट जजिंग मी बाय द ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, बिकॉज मैंने बहुत ही एस्पिरेशनल ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिख दी थी. सो मैंने ये भी सुना है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट फ्रेश ग्रेड लिए गए नहीं, आप उसको स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल होती है. मतलब आप nobody उसको likes that. Everybody knows कि why you are writing it, because you don't have enough content. That's why you write it ना. बाकी तो फॉर दैट पर्पज़ दे हैव द इंटरव्यू प्रोसेस, ये बताने के लिए कि आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप क्या करना चाहते हो, या कवर लेटर है आप कवर लेटर में लिख देते हो. सो रेज्यूमे पे तो अगर आप ये डाल रहे हो तो रेज्यूमे पे सिर्फ इसलिए डाल रहे हो कि रेज्यूमे पे और कुछ है नहीं डालने को मोस्टली, ठीक है. सो एडवाइजेबल तो ये है कि आप कोई बहुत क्रिस्प बात लिखो, और अगर वहाँ पे कवर लेटर नहीं दे रहे तो साथ में चलो आप एक लाइन ऐड कर दो. बट बेहतर ये है कि यू फोकस अ लॉट ऑन टैंजिबल थिंग्स दैट यू हैव, सर्टिफिकेशंस, अचीवमेंट्स, अकम्पलिशमेंट्स, वो चीज़ें डालो तो ज़्यादा बेहतर है. ऐसी कोई चीज़ डालो ही नहीं जो सिर्फ बातें हो, यू कैंट जस्टिफाई दैट. हाँ, अकम्पलिशमेंट स्टेटमेंट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. आई थिंक अगर हम कंटेंट की बात करें, जैसे हमने फॉर्मेट की बात की है, सो द फॉर्मेट हैज़ टू बी ब्रीफ एंड क्रिस्प. आपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, बट जितना ब्रीफ और क्रिस्प आप उसको रख सकते हैं, जितना बुलेट पॉइंट्स में कर सकते हैं उतना करना है. फिर बात आ जाती है कि
पीपल विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, उनका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि अच्छा अब हम इंफॉर्मेशन डालें क्या, उसमें क्या लिखना चाहिए कि हमने क्या गोल्स अचीव किए, क्या सिचुएशन फेस की. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप SAR फॉर्मूला यूज़ करो कि सिचुएशन क्या थी, हमने एक्शन क्या लिया और उसका रिजल्ट क्या आया. सो अगर आपने कोई भी अकम्पलिशमेंट लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने रिकॉर्ड सेल्स जनरेट की एक वक्त में, सो आप उसमें लिखो सिचुएशन क्या थी, व्हाट डिड यू डू दैट एक्चुअली हेल्प यू अचीव द रिजल्ट, कि आप रिकॉर्ड था या आपको अचीवमेंट मिली या आपने कोई स्केल अचीव किया या आपको इंडस्ट्री वाइड रिकग्निशन मिली, वट एवर अकम्पलिशमेंट दैट यू पुट आउट देयर, मेक श्योर दैट यू ऑल्सो मैंशन द situation which is the challenge that you face. Number 2 कि आपने उसके में action क्या लिया, and focus more on your personal thing, right? Resume is not a place where you use we did this, we did, no, it's yours. So I did this या I participated in this या it has to be I, it does not have to be we, right? वहाँ पे आप as a team नहीं खेल रहे होते, वहाँ पे आप सोलो प्लेयर हो, तो वहाँ पे अपने आप को, क्योंकि we का मतलब ये है कि you're creating that confusion कि perhaps somebody else did it या टीम में से ये 4-5 लोगों ने मिलके किया है, it dilutes the effect of that. So it's very important कि आप अगर आपने कुछ किया है तो आप वो लिखो और उसके अंदर अपने आप को क्रेडिट ज़रूर दो उस चीज़ का. Not saying the language should be like a lot of self praise, but it should be factual and you should take credit where you have earned it. So वो लिखना बहुत ज़रूरी है, इसमें शर्माने और घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है कोई भी. Do we have any questions from Facebook? It's a question. I think the first question was what is the difference between CV and resume? The basic question. Oh, ये तो हम वापस चले जाएंगे बहुत. I'm really sorry. I should have taken this question first. Anyone who wants to answer, resume और CV में क्या फ़र्क है? Sharjeel? CV के अंदर I think you put on things जो आपने पढ़ी हुई है, your education experience. I think इधर Chalo, thank you for participating. I got you off guard, हाँ. Anyone else? Resume और CV में क्या फ़र्क होता है? हाँ? CV और ये हो सकता है कि 3-4-5 पेजेस को CV कह देंगे, resume जो 1 पेजर होता है उसे resume कहेंगे, वरना मेरा नहीं आएगा. ऐसा ही उल्टा है? ऐसा है या उल्टा है? Is it the other way around? रेज्यूमे बड़ा होता है, CV बड़ी होती है. छोटा होता है, CC बड़ा होता है. सना? I think so. CV has in everything, just like your LinkedIn, it has everything, regardless it matches your job or not. So resume is very specific that you add in things which are specific to that job. So for example, if I have been an English teacher, my marketing job doesn't care about it. So that should not go in my resume. That probably exists in my CV, but not in resume. Right. Anybody else who wants to contribute? go with that. You'll go with मैम है. सीधा फोन ऑफ फ्रेंड का ऑप्शन भी नहीं लिया है. Mubin, do you have anything to share? नहीं, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ठीक कह रही है भाई. हाँ, ऐसा ही है. सो एक जो है वो बहुत स्पेसिफिक चीज़ है, जैसा मैंने कहा कि एक टेलर्ड कॉन्वर्सेशन है या कम्युनिकेशन है जो आप कर रहे हो, वो रेज्यूमे है आपका. और एक है CV जो कि जिसमें सब है, तो आपने उसमें सब डाल दिया अपना. ठीक है. सो दैट्स द डिफरेंस. Okay, so the question is how to explain good and bad qualities in ourselves in front of the interviewer. दैट्स अबाउट इंटरव्यू. सो इंटरव्यू एक बहुत मज़े की चीज़ होती है, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं होती, ना हमें आदत है अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करने की और अपनी वीकनेस के बारे में बात करने की. तो हम कहते हैं कोई ऐसी वीकनेस बता दो कि ना बस वो हमारी अच्छाई हो. मैं बहुत ज़्यादा काम कर लेता हूँ, कभी कभी मैं बहुत अच्छा हो जाता हूँ, कभी कभी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगेन इट्स अ कम्युनिकेशन. सो विल जस्ट आंसर दिस वन क्वेश्चन, क्योंकि ये इंटरव्यू से पर्टेन करता है, सो परहैप्स हम इसको अलहदा से टेक्स्ट पे भी आंसर कर सकते हैं. बट अगेन कीप इट रियल. अगर आप जाने से पहले इंटरव्यू प्रेप करते हो, जो कि आपको करनी चाहिए, सो प्रिपेयर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस स्टोरीज. ये तो हर कोई पूछता है, आप में अच्छी बातें क्या हैं और आप में बुरी बातें क्या हैं. कीप इट प्रोफेशनल, कीप इट अबाउट द वर्क. आप ये नहीं बता सकते कि जी मुझे तो लाइक कोई ऐसी बात जो इररेलेवेंट है या इट्स नॉट रिलेटेड टू वर्क. सो आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में प्रोफेशनल बात हमेशा करते हो. बट अगेन whenever you talk about your weakness, whenever you talk about your good and bad qualities,
what they are looking for is number one, how well are you aware of yourself, but number two, what are you doing about it. So आप कर क्या रहे हो उसके बारे में आप, राइट. सो ये भी सवाल ज़्यादातर आते हैं फ्रेश ग्रेड्स या 2-3 साल के एक्सपीरियंस वालों के साथ, जो इससे आगे जा चुके होते हैं. मोस्टली उनकी एक रेपुटेशन बन चुकी होती है एंड दे कैरी इट विद देमसेल्व्स, राइट. सो वो जारी होती है उनके साथ साथ. वहाँ पर बहुत स्पेसिफिक ज़्यादातर टारगेटेड क्वेश्चंस होते हैं अबाउट देयर प्रोफेशन, लेस अबाउट पर्सनैलिटी. वो कल्चर फिट देख जरूर रहे होते हैं, बट उसमें ये बेसिक सवाल नहीं आते. एनी अदर क्वेश्चन? Another question is, what are the resume keywords and why should I use them? रेज्यूमे कीवर्ड्स वो डिपेंड करेंगे बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री दैट यू आर अप्लाइंग फॉर. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बज़वर्ड्स में और कीवर्ड्स में फ़र्क होता है. बज़वर्ड्स पॉपुलर वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स वो होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको वो टूल्स एंड जो आप यूज़ करते हो वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वहाँ लिखने की ज़रूरत है. अगर आप इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की नेक्स्ट पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे तो अपने प्रोफेशन रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हैं, जितने स्किल्स हैं, जितनी आप प्रोसेसेस के नाम ले सकते हो जिनमें आपने काम किया है, अकम्पलिशमेंट्स में या जहाँ भी, वो आपको मेंशन करना ज़रूरी है. अगर आपने रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस लिए हैं तो वो मेंशन करना ज़रूरी है. सो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, पोजीशन टू पोजीशन वेरी करते हैं वर्ड्स, बट ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है वो ये कि लाइक हम बहुत ज़्यादा मिथ भी है शायद या इट्स रियलिटी, हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि योर सीवी और रेज्यूमे शुड बी ऑफ 1 पेज, इससे ज़्यादा पेजेस नहीं होने चाहिए. जो इंटरव्यू है वो बोर हो जाता है या वो ज़्यादा गौर से देखता नहीं है अगर ज़्यादा पेजेस है, बहुत डिटेल में आपने लिखा है. तो शुड इट बी 1 पेजर और यू कैन ऐड पेजेस? देखो, जो फ्रेश ग्रेड्स होते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि 1 पेज से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दे टेंड टू राइट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. बट अगर आपका 7-8 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है, इट्स इनएविटेबल दैट यू हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. यू शुड हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अकम्पलिशमेंट्स, राइट. तो उसकी उस सूरत में सेकंड पेज पे चली जाती है बात. ऑल्दो अगेन अगर आप यूरोपियन यूनियन वाला फॉर्मेट फॉलो करो तो वो फिर भी एक पेज पे कहते हैं कि एक पेज पे आ जाए सारी इन्फॉर्मेशन, राइट. अगर आप हार्वर्ड वाला फॉलो करो तो वो भी कहते हैं कि एक पेज पे आ जाए, आप ओमिट कर दें कुछ चीज़ें, ओनली जो मोस्ट रिसेंट अकम्पलिशमेंट्स हैं वो ऊपर करें और उससे रिलेटेड करें. उसकी एक वजह होती है, राइट. उसकी एक वजह ये होती है अगर आप दे रिलाई ऑन दैट चेक कि फॉर एग्जांपल अगर इस कंपनी में आने से पहले मैं काम कर रहा था XYZ में, तो XYZ उससे पीछे वाले को देख चुके होंगे, उससे पीछे वाले उससे, सो दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन द, और फिर वो ड्यू डिलीजेंस में आपसे ले लेते हैं डिटेल्स इन्फॉर्मेशन टू काउंटर चेक. तो वो कहते हैं कि आप एक पेज के ऊपर लाइक दे दो अपना. फ्रेश ग्रेड्स को तो ख़ास तौर पे हम लोग ये कहते हैं कि एक पेज में कर दो, क्योंकि दे हैव दिस हैबिट ऑफ राइटिंग स्टोरीज. सो वो अगर आप उनके वो पॉइंट्स भी देखो तो आई वर्क विद अ ग्रुप ऑफ 5 people ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड वी मैनेज टू डू दिस रिसर्च विद लाइक, तो वो बुलेट पॉइंट्स के बजाय पूरे पूरे पैराग्राफ्स होते हैं. विच इट डिस्करेज की डोंट डू दैट. बी पुट इन वेरी स्पेसिफिक, क्या था, आपने क्या किया और क्या अचीव किया. बस 3 चीज़ें आपकी हर जॉब के अंदर होता है कि व्हाट वाज द सिचुएशन, व्हाट वाज द एक्शन एंड व्हाट वाज द रिजल्ट. दैट्स हाउ यू डू इट. इट्स इम्पॉर्टेंट. एंड अगर आप काउंटर साइड पे किसी भी HR वाले से बात करो, CV स्कैन करना या रेज्यूमे स्कैन करना, it's the most tiresome job of their, it's very tiring. It takes a lot of energy, right. अब इमेजिन कि वो 5 पेजेस पे आपने 5 लाइनें 5 पेजेस बना दिए, और इमेजिन करो किसी दूसरे ने तो इट ऑल्सो टेल्स समथिंग अबाउट यू कि हाउ वेल कैन यू कम्युनिकेट, हाउ वेल कैन यू ड्राफ्ट, आप क्या कर सकते हो. ये भी आपकी काफ़ी चीज़ें बता रहा होता है आपके बारे के अंदर. सो अगेन दिस इज़ अ रीज़न फॉर देम टू डिस्कार्ड कि आपके पास इतनी नॉलेज नहीं थी या इतना स्किल नहीं था कि आप अपने आप को एक पेज पे डिफाइन कर सको. मेरे साथ एक वाक़या हुआ था. मैंने अराउंड 20 to 25 सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, ठीक है. अब वो सारी कोई रेलिवेंट जॉब रही है, सारी डिजिटल मार्केटिंग में, और वो रेलिवेंट होगी ना सारी की सारी. तो मुझे अब एक टीचर थे मेरे, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप अप्लाई नहीं करना है किसी पोजीशन पर अप्लाई, उन्होंने कहा था कि अपनी सारी ना लिखो, क्योंकि अभी आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, अभी आप पढ़ रहे हो, तो आपको ये देर नहीं देता कि आप मतलब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लीट करो. तो इसको भी बता देंगे कि आप कह रहे हैं कि ग्रेजुएट के पास
पास इन्फॉर्मेशन, आपने वो सर्टिफिकेट्स अर्न किए हैं, आपके पास हैं पड़े, आई वुड से पुट इट आउट देयर। रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स जो डिजिटल मार्केटिंग के ही हैं, जो उनको ज़रूर लिखो, उनको, दैट्स योर हार्ड वर्क, यू हैव अर्नड इट, वाई नॉट। इट ब्रिंग्स क्रेडिबिलिटी टू अ फ्रेश ग्रेड। आपके जब फ्रेश ग्रेड को कोई हायर कर रहा होता है तो वो क्या क्या वो आपके 3 इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं फ्रेश ग्रेड्स के, फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू, राइट। वो आपको टेस्ट कर रहे होते हैं, साइकोमेट्रिक भी होता है कई जगह पे, सब कुछ होता है। क्यों होता है? बाकी जब एक्सपीरियंस हो जाता है बंदा तो उसके क्यों नहीं होते ये? तो अगर आप अपने सर्टिफिकेट्स लिखते हो तो दैट ब्रिंग्स इन दैट क्रेडिबिलिटी गैप को फिल कर रहे होते हैं। इंडस्ट्री जो है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारी एकेडमिया और इंडस्ट्री में इतना गैप है, इंडस्ट्री एकेडमिया को इंटायरली ट्रस्ट नहीं करती, वरना तो बड़ा आसान होता। एकेडमिया कहती है मेरा टॉप 1% बच्चा है, इंडस्ट्री कहती है आओ जी बिस्मिल्लाह हमने ले लिया इसको। इतने हैवी प्रोसेसेस होते ही नहीं फ्रेश ग्रेड्स के लिए, राइट। इतने प्रोसेसेस इसीलिए हैं क्योंकि फ्रेश ग्रेड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेश ग्रेड्स पे होती है, क्योंकि उनको रिसोर्स बनाना होता है, राइट। सो इसीलिए ड्यू डिलिजेंस भी ज़्यादा होती है वहाँ पे। सो आई वुड रिकमेंड, अगर आपके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस हैं और जिस जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हो तो वो रेलिवेंट सर्टिफिकेशन ज़रूर डालो। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा और है और आप वो 40 की 40 डाल दो तो आपकी रेलिवेंट वाली भी बीच में कहीं छुप जाएंगी, राइट। सो यू नीड टू पुट इन द रेलिवेंट वंस देयर, वो ज़रूर डालो उसमें, राइट जी। अगर हम किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई करें तो उनकी डिमांड रिक्वायरमेंट ये है एक स्किल सेट जिसमें हम प्रोफिशिएंट हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास कुछ स्किल्स हैं लेकिन उसमें हम इतना प्रोफिशिएंट नहीं है, गुड है, तो शुड बी इंक्लूडेड इन आवर सीवी। डिपेंड करता है वो स्किल्स आपने कैसे एक्वायर की हैं। आपने कोई कोर्स किया है, आपने कोई सर्टिफिकेशन की, व्हाट्स द प्रूफ ऑफ दैट प्रोफिशिएंसी। इफ़ यू हैव अ प्रूफ ऑफ दैट प्रोफिशिएंसी तो फिर तो डालो ज़रूर, ठीक है। मतलब एटलीस्ट अगर आपके पास, अगेन वो 40 सर्टिफिकेशंस की बात कर रहे हैं, उनके पास जितनी भी हैं XYZ, ठीक है। अगर तो आपके पास वो एक ही है अभी, तो फिर तो 2-3 तो कम से कम आप वहाँ पे डालो, ठीक है। रेलिवेंस के हिसाब से उनको प्रायोरिटाइज कर लो वहाँ पे। अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी का प्रूफ है, और अगर आपके पास नहीं है, जैसे हम कई दफ़ा डाल देते हैं प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एंड उर्दू, ठीक है। अब प्रूफ किसी के पास नहीं है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का, ठीक है। और अब तो बच्चों से उर्दू का भी मांगना चाहिए, जो हालात चल रहे हैं उर्दू के, लेकिन किसी के पास नहीं होता, बट डाला सबने होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन है जी हमारी, ठीक है। एंड दैट लैंड्स यू इनटू ट्रबल। जब आप आते हैं तो आपको, बिकॉज यू डोंट हैव एनी, आप मतलब आपके पास तो कोई, तो इस तरह कोई ऐसी चीज़ मत लिख देना कि वो वहाँ पे फिर लाइक यू डोंट हैव एनी प्रूफ ऑफ दैट। बेटर टू पुट थिंग्स जिनका आपका प्रोफिशिएंसी का, कोई आपने कुछ काम किया है उसमें, प्रैक्टिकली कुछ अचीव किया है उसमें, तो वो बेटर है। अगर नहीं है तो फिर कुछ सेफ चीज़ें होती हैं वो डाल दें वहाँ पे, तो वो लाइक इट्स स्टिल समथिंग दैट इज़ मैनेजेबल, वो आप डाल सकते हैं वहाँ पे। ऑर्गेनाइज्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो, कैन वर्क वेल विद डायरेक्शन, कोई अटेंशन टू डिटेल आप दे सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें। लेकिन बेटर है कि आप, अगर टैंजिबल आपके पास कोई चीज़ है तो वो डाल दो। दैट इज़ ओनली एट, अब देखो ये बात होती है जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो अपनी लर्निंग के अंदर या टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, आप ये कर सकते हो कि यू कैन लुक फॉर online platforms where you can test your skills and get a certificate. You don't really have to clear a course. You can give an exam and you can आप वो अपने सर्टिफिकेट, अब ऐसी भी हैं जहाँ पे आप अगर अपने स्किल को टेस्ट करना चाहते हो तो विल गिव यू अ प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कि अच्छा जी आप कितने प्रोफिशिएंट हैं किस स्किल के अंदर जो आप दावा कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन आई डोंट थिंक कि अगर आप सेल्फ लर्न किया आपने चीज़ों के अंदर, इंटरव्यू में आप ज़रूर ऐसी बातें कर सकते हो, बता सकते हो उनको कि बाय द वे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि मैं ये कर चुका हूँ, बट डोंट पुट इट आउट ऑन द रेज्यूमे। तो सर इतनी सारी स्किल्स होती हैं जो बंदा यूट्यूब से सीख लेता है, तो अगर आप उसको मतलब कहीं कर ही नहीं सकते तो एग्ज़ाम के पैसे लगते हैं जो हर कोई इस वजह से तो वो यूट्यूब से सीखते हैं। तो इस तरह तो बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के, एक्सेल के, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के
बहुत सारी चीज़ों के इवन कोडिंग वगैरह के लोग यूट्यूब ट्यूटोरियल्स लेते हैं, बच्चे खुद से सीखते हैं, तो वो फिर वेस्ट हो गए? नहीं, सो इट डिपेंड्स कि आप सेल्फ लर्निंग जो होती है या यूट्यूब पे से आप लर्न कर रहे होते हो, आई थिंक इट्स मोर अबाउट गेटिंग दैट स्किल रादर दैन यूजिंग इट टू मोनेटाइज समथिंग, ठीक है। अगर आपने कोडिंग सीखी है तो परहैप्स आप एक फ्रीलांसर हो, आपको बस कोई प्रोजेक्ट, यूजुअली ये होता है कुछ इनिशिएट करता है चीज़ को, कि आप एक फ्रीलांसर हो, आपको बस कोई नई असाइनमेंट आई, आपको नहीं समझ आई, आपने जल्दी से गूगल किया, आपने यूट्यूब पर गया, आपने सीख लिया कि कौन सा कोड है, उसको कैसे करेंगे आप, क्या चलेगा, या आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो इमीडिएटली यूट्यूब से करते हुए। आई एग्री, अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट हैव मनी, यूट्यूब हैज़ बीन वेरी गुड, बट मोस्ट ऑफ these people don't do this to get a job. They don't do this to get a job. Either they are on job and they improve their skills, वो on job improvement कर रहे होते हैं, या वो freelance work के लिए इसको use कर रहे होते हैं. Don't do it to build their resume. It's not done to build their resume. It's done to do that. अब again बात आ जाती है, अगर आप on job ये बात कर रहे होते हो, then you can put it out there in the accomplishment, right? कि I managed this Excel project XYZ, मैंने ये उसमें किया, ये सिचुएशन थी, ये एक्शन था, ये रिजल्ट आया आपका, और फिर आपने कर लिया। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है अगेन, कि जब आप स्किल लर्न करने की कोशिश कर रहे हो तो प्लीज़ हैव योर पर्पस इन माइंड। जैसा मैंने कहा कि इन माई एक्सपीरियंस व्हाट आई थिंक इज़ पीपल लर्न फ्रॉम यूट्यूब एंड फ्री रिसोर्सेज जब उन्होंने किसी चीज़ पर डिलीवर करना होता है फॉर ऑन जॉब या अदरवाइज फ्रीलांस वगैरह में। मगर अगर आपने उसकी एक प्रोफिशेंसी अर्न करनी है, देन परहैप्स यूट्यूब इज़ नॉट द राइट प्लेटफॉर्म, देन यू गो फॉर स्टैंडर्डाइज कोर्सेज। यूट्यूब इज़ नॉट स्टैंडर्डाइज, राइट? फिर आप स्टैंडर्डाइज कोर्सेज पे जाते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कम टू एटलेटिका, आप हमारे पास आते हो, आप हमें कहते हो कि मैं 40 सर्टिफिकेशंस जो हैं वो कर सकता हूँ, और हम आपको कहेंगे नहीं, यू ओनली नीड टू डू 5 जो आपके रेलिवेंट है, आपके एप्टीट्यूड, आपके स्ट्रेंथ से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके करियर ऑब्जेक्टिव से मैच करते हैं। एंड बाय द वे ये वो लोग हैं जो बेस्ट करा रहे हैं आपको, कौन से कोर्सेज हैं जो आपको सूट करते हैं प्राइस वाइज, अदरवाइज लर्निंग आउटकम वाइज, और कौन सी कंपनीज उसको एक्सेप्ट करती हैं फिर आगे। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर, आपका पर्पज़ है जॉब लेना, आपका पर्पज़ है प्रोफिशेंसी का एक प्रूफ लेना और जॉब के लिए वहाँ पे जाना, तो फिर यू नीड टू फाइंड पीपल हु कैन देन हेल्प यू। एंड लाइक आई सेड, वी हैव अ ग्रुप, सो पोस्ट इट आउट देयर। आप वहाँ पे पूछ सकते हो कि यार अच्छा मेरा मकसद ये है, तो व्हाट इज़ द बेस्ट सोर्स टू गेट दिस स्किल फ्रॉम। सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट। Any other questions जो हमारे पास है? So another question is, right, what should a person write if they don't have ample experience in the job field they are applying for? They should. Sometimes you have experience in a job, but you want to switch to a field, like I am a digital marketer and I want to be a graphic designer. अब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लाइक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे आती है, मैं स्विच करना चाह रहा हूँ, मैं क्या लिखूँगा? So building up on the example that you have shared, पहली बात तो ये कि डू यू हैव, इफ़ यू डोंट हैव द स्किल, इफ़ यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस, डू यू हैव द स्किल टू बी दैट पर्सन? ठीक है, तो देन यू विल फोकस ऑन द स्किल दैट यू एक्वायर्ड। अगर ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाह रहे हो, आप कहोगे मैंने एडोब सीखा है जी, इलस्ट्रेटर सीखा है मैंने, फोटोशॉप सीखा है मैंने, मैंने इफ़ यू हैव डन एनी फ्रीलांस और आपका फाइवर पे अकाउंट है या आपका किसी पे अपवर्क पे अकाउंट है, यू मेंशन दैट, अगर आपको कोई प्रॉपर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, सो देन यू फोकस मोर ऑन द स्किल्स एंड द ऑब्जेक्टिव दैट हैव चेंज फॉर यू। लाइक आई सेड, अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल और आप चेंज करना चाहते हो अपनी फील्ड, सो समथिंग हैज़ चेंज्ड, सो मेक श्योर दैट यू पुट इट आउट देयर कि व्हाट हैज़ चेंज फॉर यू, राइट? और फिर उसके बाद फोकस ऑन द स्किल्स दैट यू हैव एक्वायर्ड नाउ दैट मेक यू एलिजिबल टू बी वर्किंग इन दैट फील्ड। अगर कल को मैं कहता हूँ कि मैं फाइनेंस से हट जाऊँ और मैं किसी और तरफ चला जाऊँ, लेट्स से मार्केटिंग की तरफ चला जाऊँ, राइट? सो मैं वहाँ पे लिखूँगा कि मैंने फेसबुक एड्स का कोर्स किया है, मैंने फेसबुक एड्स सीखे, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज किए, या वट एवर आई हैव अचीव्ड इन दैट, मैंने कैंपेन्स रन किए, मेरे कैंपेन्स का ये आउटकम्स थे। सो आई वुड राइट दैट डाउन, राइट? एक्सपीरियंस तो मेरे पास नहीं है 5-6 साल का उसके अंदर, बट आई वुड राइट द स्किल एंड द प्रैक्टिस दैट आई हैव डन। सो कुछ ना कुछ वहाँ पे, और अगर आप इसके बगैर करना चाहते हैं, जो कि आजकल बहुत सारे बच्चे करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो आजकल के फ्रेश ग्रेड्स करते हैं ना, वो करते हैं, ये हमने रेज्यूमे बनाया और हमने टारगेट किए बगैर सारी इंडस्ट्रीज़ में यही फेंक दिया।
सो सबसे बड़ा मिस्टेक ये होती है कि इंडस्ट्री खुद ही देख लेगी इसमें से हम एलिजिबल हैं कि नहीं. नो, यू आर इनिशिएटिंग द कॉन्वर्सेशन, सो यू हैव टू टेलर योर रेज्यूमे अकॉर्डिंग. और मतलब डेस्परेशन में ये नहीं हो सकता कि आप यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप किस फील्ड में और किस इंडस्ट्री से स्टार्ट करना चाह रहे हो. यू कांट बी you can't be bombarding every industry. This has a lot of negative effects. अगर हमें ये पता है, हम लिंक्डइन पे देखते हैं कि ये बंदे ने तो पता नहीं 50 डिफरेंट में अप्लाई किया हुआ है जॉब्स में, और हम इसको किसी स्पेसिफिक रोल के लिए देखना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये तो टू डेस्परेट है, इसने तो फिगर आउट ही नहीं किया है क्या करना. ये तो आके फिर फिगर आउट करेगा कि मुझे ये जॉब करनी भी है कि नहीं, मुझे रहना भी है यहाँ पे कि नहीं रहना, राइट. सो डोंट लेट द डेस्परेशन गेट द बेटर ऑफ यू. मेक श्योर दैट यू आर डूइंग योर होमवर्क एंड मेक श्योर दैट आप चूज़ कर रहे हैं और उसी हिसाब से टेलर कर रहे हैं अपनी कॉन्वर्सेशन को. एंड लास्ट बिट आई होप वी कैन. एक और है कि फ्रीलांसिंग या इन्फ्लुएंसर एक्सपीरियंस कैसे डाल सकते हैं, क्योंकि फाइवर वगैरह पे हम प्रोजेक्ट्स तो करते हैं, हम दिखाएं कैसे. यू हैव अ प्रोफाइल. जो फाइवर का आप अकम्पलिशमेंट स्टेटमेंट लिखें, आप अकम्पलिशमेंट स्टेटमेट इज ऑल अबाउट व्हाट यू हैव अचीव्ड, राइट. सो वर्किंग एट फाइवर, नो, उसमें आपका जॉब सक्सेस रेट होता है वहाँ पे, उसमें आपके स्टार फॉर सो टैंजिबल आउटकम्स वहाँ पे आपके सारी मेंशन होती है, आपके लेवल्स होते हैं, और उसके अलावा आपको रिव्यूज़ मिलते हैं आपके. अगर आप 5 स्टार रिव्यूज़ हैं आपके पास, सो इट्स दैट समथिंग. Yes, so there are stats that you can share. अपनी accomplishment statements बना के आप वहाँ share कर सकते हैं. So I mean, rather than just giving a very generalized statement, it's always good कि आप specific verifiable information दें अपने resume के अंदर. Can we move forward? Yes, you can. अच्छा, लास्ट बिट, what do you need to avoid. हम इस पर बात कर चुके हैं, बट हम इसको थोड़ा सा टारगेट कर देते हैं. एक तो ये है कि प्लीज़ कंफ्यूजिंग लेआउट्स नहीं रखने कभी भी, राइट. बहुत ज़्यादा कि हमने 4 चीज़ें जो है उसमें समाने की कोशिश की, यहाँ पे भी एक टैब बना दिया, यहाँ पे भी एक टैब बना दिया, सेंटर में इन्फॉर्मेशन कुछ. कीप इट वेरी सिंपल एंड ईजी ऑन द आई. इफ़ इट्स नॉट, आपके यूज़र एक्सपीरियंस मैटर्स अलॉट. सो आपका जो जितना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होगा, यूज़र इंटरफेस जितना अच्छा होगा आपके रेज्यूमे का, उतना बेहतर है. सो इट शुड बी वेरी क्लीन, इट शुड बी वेरी सिंपल फॉर पीपल टू रीड. एक दूसरी बात ये, ऑलवेज डू प्रूफ रीडिंग. बड़े से बड़े, और ख़ासतौर पे जब इन्फॉर्मेशन बढ़ना शुरू होती है रेज्यूमे के अंदर, तभी गलतियाँ होना शुरू हो जाती हैं. सो मेक श्योर कि एरर्स एंड इनकन्सिस्टेंसीज़ को आप अवॉइड कर रहे हैं. इनकन्सिस्टेंसी ये भी हो सकती है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने फॉलो नहीं किया, रीसेंट से मोस्ट रीसेंट से ओल्ड अपनी पोस्ट वो जो जॉब एक्सपीरियंस है वो नहीं बताया आपने बीच में मिक्स एंड मैच कर दिया. सो मेक श्योर दैट यू डू दैट. कभी भी वो नहीं करना आपने कि बगैर टारगेट किए रेज्यूमे बना दें. रेज्यूमे हैज़ टू बी टारगेटेड. वो टारगेट होगा. उसमें एक ही सवाल है, व्हाट आर यू सेलिंग, टू whom आर यू सेलिंग. किससे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, क्या बेच रहे हो, एंड कैसे बेचना है उसको. सो ये 4 सवाल आपके माइंड में होने चाहिए कि मैं किसके लिए बना रहा हूँ, किससे बात करना शुरू करना है मैंने, व्हाट एम आई ट्राइंग टू सेल. मैं अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल सेट कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपोर्ट मार्केटिंग स्किल सेट कर रहा हूँ, मैं अपने फलाने स्किल सेल कर रहा हूँ उनको इस वक्त. सो वो चीज़ें आपने प्रोमिनेंट रखनी है, आपको पता होना चाहिए. इट शुड नॉट बी वेरी हार्ड टू डिटर्मिन व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव अचीव्ड. ये बहुत ज़रूरी है कि उनको बहुत क्विकली पता लग जाना चाहिए कि आपने क्या किया हुआ है, क्या अचीव किया हुआ है. दूसरी बात, जो आखिरी बात है, वो ये है कि प्लीज़ ये नहीं समझना कि रेज्यूमे विल ओनली डू द ट्रिक फॉर यू. मुबीन ने बहुत पहले हमें ट्रिक बता दी है. ट्रिक है नेटवर्किंग, ट्रिक ये है सोशल मीडिया प्रोफाइल्स अपनी मेंटेन रखना, ट्रिक ये है कि एक्टिवली उस सर्कल में इन्वॉल्व रहना जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हो. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन बातों का ध्यान रखो. और आखिरी और बहुत आखिरी बात ये है, योर करियर डेवलपमेंट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज़ नोबडी एल्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये ट्रिप्स, ये टेक्निक्स, ये सब कुछ ये आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, मगर द ड्राइव हैज़ टू कम फ्रॉम यू. अगर आप में ड्राइव नहीं है, अगर आप लोग मेहनत नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे, हाँ होमवर्क नहीं कर रहे, हार्डवर्क नहीं कर रहे, सो परहैप्स आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे एंड समबडी एल्स विल गेट सक्सेस अ लिटिल क्विकर देन यू डू. सक्सेस तो इंशाल्लाह सबको ही मिल जाता है, मगर मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग इन योर एफर्ट एंड हार्ड वर्क. सो थैंक यू वेरी मच. वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस. जी. एक और सवाल यह है कि जब तक आप किसी सीनियर मैनेजमेंट में नहीं पहुंचते हैं, तब तक आप कोई प्रॉपरली इस तरह लीड नहीं कर रहे होते. तो अगर आपने रेज्यूमे पे लिखा हो आई डिड दिस, आई इंक्रीज्ड सेल, तो रेज्यूमे पे रिक्रूटर पकड़ लेता है ये
कर रहे थे, आप तो टीम प्लेयर नहीं हो, आप तो टीम वर्कर नहीं हो, हमें तो टीम वर्कर चाहिए। अभी आपने शुरू में कहा था फोकस ऑन योर सेल्फ, वी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे वो कहते हैं वही वी लिखना चाहिए था, तुमने अकेले थोड़ी कर लिया, तुम तो टीम वर्कर नहीं हो, फिर क्या करें? अगेन जो रेज्यूमे है दैट्स अबाउट योर इंडिविजुअल अकम्पलिशमेंट्स, सो उसमें आनी भी इंडिविजुअल अकम्पलिशमेंट्स चाहिए आपकी ज़्यादातर, राइट? कि आपने इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के तौर पे क्या किया है, आई थिंक, और उसी चीज़ को आप जस्टिफाई भी कर सकते हो। सो इसका मतलब ये नहीं है कि एज अ टीम जो आपने अचीव किया है वो आप उसको अपने ऊपर ले लो, बट टीम में आपका भी तो एक रोल होगा ना कि आपने एग्जैक्टली क्या किया था, राइट? समथिंग दैट यू इनिशिएटेड, समथिंग दैट यू डिड, सो फोकस मोर ऑन दैट कि आपने खुद से क्या किया था उस पार्ट के अंदर, एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन क्या था और उसके KPIs क्या थे और उन KPIs में आपने क्या अचीव किया। नॉट सेइंग दैट यू शुड बी एरोगेंट अबाउट इट और आप सारा क्रेडिट खुद ले लो, बट जो आपने काम किया है, जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो छोटा सा है चाहे वो बड़ा सा है, और उसके क्या रिजल्ट्स थे उसको मेंशन करना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप कहो कि जी हाँ जी कंपनी की सेल्स जो है वो 200% बढ़ गई थी और मैंने ये किया था, नहीं, आपने उसमें से कोई बहुत स्पेसिफिक चीज़ की होगी। यू शुड बी एबल टू पॉइंट दैट आउट कि आपने वो स्पेसिफिक क्या किया था या आपने क्या प्रपोज किया था या व्हाट वर यू मेड टू वर्क ऑन। सो इट्स नॉट अबाउट not giving credit to the team, it's more about not forgetting the individual contribution that you made and making sure that it's there for people to see. इसमें एक चीज़ और है कि जब हम जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तब हम यूज़ करेंगे आई, ठीक है? अगर तब हम वी यूज़ करेंगे, सामने वाला पूछेगा अच्छा वो तो टीम में थे तो तुमने क्या किया, ये बताओ। हाँ, when we have joined the company then we will use the word we कि टीम को प्रेजेंट करें। Yes. ज्वाइनिंग कंपनी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आपका इम्तिहान है, और आप जब आप टीम प्लेयर हो या नहीं हो वो एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है, टीम ने ही अचीव किया है ना। अगर आप इंडिविजुअल खेल रहे होते तो शायद वो टीम 200% या 30 वो टारगेट अचीव भी नहीं होता, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर एबल टू पिन पॉइंट कि आपने ऐसा क्या किया था वहाँ पे। सो अपनी अकम्पलिशमेंट्स को हमेशा रखना चाहिए, एंड कंपनीज भी इसी तरह सर्टिफिकेट्स देती हैं, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन को वैल्यू करके देती हैं। तो आई थिंक यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड मुबीन, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड do we have any other questions? No, sir. Right, so I think we should move on to the second stage, and that's a brief introduction of Adletica that we want to give you. So we believe that तमाम लोगों के पास पाकिस्तान के अंदर the biggest problem that the education sector faces is that ये नहीं कि यहाँ पे content providers नहीं है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स नहीं है। मसला ये है कि हम एक स्पेसिफिक अमाउंट एजुकेशन पे खर्च करते हैं, राइट? लेकिन हमें कोई ये बताता नहीं है कि इसको खर्च किधर करना है ताकि हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, राइट? सो आप 40 सर्टिफिकेशंस ले सकते हो या वो 5 सर्टिफिकेशन ले सकते हो जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दें। सो बीइंग मोर एफिशिएंट विद आवर चॉइसेस। सो एडलेटिका जो है वो करियर डिस्कवरी से करियर सक्सेस सारा कवर करता है। वी हेल्प यू डिटर्मिन योर करियर चॉइसेस, वी हेल्प यू गेट इन टू दैट करियर, उसके रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड माइंडसेट डेवलपमेंट। और जो आखिरी बात जो हमें लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है, जब आप अपने करियर्स में होते हैं, एवरीबडी नीड्स मेंटोर्स। आपको वो कौन से लोग हैं जो आपको बताएंगे कि भाई अब तुम एसोसिएट से मैनेजर, मैनेजर से डायरेक्टर, डायरेक्टर से MD, तुम अपना ग्रोथ कैसे कर सकते हो। सो हमने वो तमाम लोगों जो कि इस वक्त C लेवल पोजीशंस पे हैं, जो कि इस वक्त डायरेक्टर लेवल पोजीशंस पे हैं, अपनी एक्सेल कर गए हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर जो हमारे पाकिस्तानी बैठे हैं अच्छी कंपनीज़ में, गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, बैंक्स। सो हमने उनका एक पूल बनाया है। सो हम अपने बच्चों को उनका एक्सेस देते हैं। एवरीबडी हैज़ देयर ओन व्हाट्सएप ग्रुप, देयर ग्रुप्स, आप वहाँ पे ऐड होते हैं। यू कैन बुक अ टाइम विद देम, आप 30 मिनट्स का स्लॉट उनसे बुक कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ दी स्लॉट्स आर फ्री, प्रो बोनो वो लोग कर रहे हैं ये सारा कुछ टू गिव बैक टू द सोसाइटी। कहीं ना कहीं जो है वो कमिटमेंट फ़ी शायद वो स्मॉल अमाउंट 500 रुपीज़ या कुछ वो अपनी रख रहे हैं ताकि जो है वो बच्चे सीरियस आएँ, दे एंड अप मेकिंग
use of that time. So इस वक्त skill development में भी we are working with companies, they are giving us the skills that they need, जो कि बच्चों में नहीं है आजकल. हम उन skill development पे बच्चों को train कर रहे हैं, काम करा रहे हैं अपने partners के साथ, and then हम उन्हें उन companies में placement में help कर रहे हैं, right? इस वक्त हमारा जो existing network है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ हम पार्टनर्ड हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनर्ड हैं, और हम लोग अक्रॉस पाकिस्तान इस वक्त काम कर रहे हैं. एंड हमारा एम ये है कि वी शुड बी द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एंगेज्ड कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स. सो हमें एक लार्जेस्ट ड्राइव बनना है लर्नर्स की पाकिस्तान के अंदर. अगर आप लर्निंग का कुछ भी सोचो तो आपको पता हो कि आप एडी पे मैसेज कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो, एंड यू विल बी हेल्प्ड. सो दैट्स द एम, दैट्स व्हाट वी डू. It's completely free to join the group, so I will recommend all of you to join the group and invite other people to join as well. Help us make it the biggest community, help us make it the most engaged community. We want support and love from everyone who's watching, everyone who will watch this eventually. Please help us be the largest community. हमारी कोशिश ये है कि सब तमाम सवालों के जवाबात और तमाम mentors की जो आपको ज़रूरत है वो इस ग्रुप पे फुलफ़िल हो जाए, ताकि we have people जो कि इंडस्ट्री में आके ना सोचे उन्हें क्या करना है, बल्कि यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, और उनको पता हो कि भाई हमने हिट द रोड रनिंग वाला हिसाब है, हमें तो एग्जैक्टली पता है हमने बाहर जाके क्या करना है, और हमने एस कर लेना है जॉब वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, बिजनेस में. चाहे आप जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वट एवर फील्ड यू हैव, वी विल मेक श्योर दैट वी प्रोवाइड यू रिसोर्सेज एंड वी प्रोवाइड यू हेल्प एंड गाइडेंस टू बी द बेस्ट एट इट. सो ये पर्पज़ है एटलेटिका का. आप हमारी वेबसाइट पर जाके atletica.com या हमारे पोर्टल पे जाके आप अभी हमारी ऑफरिंग्स को देख सकते हैं, आप तमाम कोर्सेज को देख सकते हैं. एंड वी हैव अ बिग इवेंट कमिंग अप ऑन 8th of January, जहाँ पे हमारी कंपनीज भी आएंगी, जहाँ पे हमारे मेंटोर्स भी आएंगे. दे वुड वांट टू इंटरैक्ट विद ऑल ऑफ यू. वी विल बी शेयरिंग डिटेल्स ऑन आवर फेसबुक पेज एंड थ्रू आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स. सो प्लीज़ stay tuned for that information. And for all of you who have sent in their video submissions for the Discover Me contest, thank you very much. We are loving the videos, we are watching them, we are having a great time. और हमें बहुत खुशी हुई है ये देख के कि एक बड़ा सिंपल सा सवाल था बट इतनी ज़बरदस्त सी वीडियोज़ उस पर बन के आ रही हैं. सो कीप द वीडियोज़ कमिंग. वी होप कल की डेडलाइन है, सो कल तक हमारे पास और ढेर सारी आ जाएंगी. एंड द मोर द मेरियर. एंड गुड लक टू एवरीवन हु विल विन द प्राइजेज इवेंचुअली. और वो भी हम 8 तारीख को अनाउंस करेंगे. सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल. And on behalf of Team Atletica, I invite all of you to join us for the event. हमें बहुत खुशी होगी कि आप लोग आएंगे. We'll have a learning component, but we'll also have some fun activities for you. Thank you. I think it's time to say goodbye to all of you. Allah Hafiz. Take care.